I will give you tips. Okay, how should we make sure that our proposal is error free and have the chances of getting shortlisted? Hmm? So first and foremost, emphasize on importance and relevance. मतलब जो भी फंडिंग एजेंसी है, जो भी थीमेटिक एरिया उन्होंने डाले हैं, whether our proposal or my proposal will be relevant and important to their guidelines and priorities. Okay, many a time, despite having principal investigator and other people in the team, you can approach a field expert, okay, and take a letter from them saying that he or she is willing to help you, because that makes a big difference. और ऐसे करते समय whatever honorarium you have to give to that field expert, you have to put that in the budget also, and you have to pay genuinely. ऐसा नहीं कि उनसे 100 लिए और इनको 50 दिए, नहीं. You have to be transparent. So many a time there are a field expert, if they trust you, they will act as an advisor or consultant to the team, and from time to time give their input. वो भी help करता है. Okay. So how to develop a hypothesis? First thing, it should be a testable idea or a notion. That means which can be tested. See, this is unlike the PhD thesis. Many a time I have seen everywhere, not only in India, even abroad, not all the hypotheses are testable by statistical tool. Sometimes couple of them are tested just qualitatively. Okay, but here it is absolutely quantitative testable notion. Okay, which you can test. Okay, then understand the basic premise for the proposal. Okay, and once you formed it, make it focused, फिर आगे का काम अपने आप हो जाएगा. Okay, then the hypothesis has to be bigger than the specific aim and objective. Again, this is very different as compared to the PhD thesis. Here, everything is bottled or crystalled down to the hypothesis. Why you are particularly interested to test that particular objective, particular hypothesis. So it has to be bigger than aim or objective. Then rationale for study linked to the each aspect of the hypothesis. जब आप एक हाइपोथेसिस लिखते हो, तो उसका हमें रैशनली तो देना है, बट वो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए अगर आप 1 2 3 4 5 स्टेप्स करने वाले हो, तो आपको वो 5 स्टेप का भी रैशनली आपको देना पड़ेगा. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? एंड देन ऑफ कोर्स, if you are conducting an experiment to approve or disapprove the hypothesis, you have to write the potential outcome. So I would still say that writing proposal for scientific project is, I would say, easier than the non-science stream. But having said that, it is not impossible. It can be also done in a very fascinating way. Avoid any typographical, grammatical, spelling error. त्याच्यामध्ये शून्य. मी CFO असताना बऱ्याच लोकांचे रेज्यूमे यायचे माझ्याकडे, और मेरे को आपके CV या रेज्यूमे में अगर स्पेलिंग एरर दिखती थी ना, मैं उसको फाड़ के फेंक देता था. आपको अगर कोई जॉब देने वाला है, तो कम से कम आप आपका CV तो एरर फ्री रखो. मी आमच्या MBAच्या मुलांना बरेचदा सांगतो, फॉन्ट ही प्रॉपर असायचे, ते मी सांगतो कोणते फॉन्ट वापरायचे. अगर कोई एजेंसी आपको पैसा देने वाली है ना, उसमें एक भी गलती नहीं चाहिए, 0 एरर. दैट शोज कि आपका डेडिकेशन कितना है वो प्रपोजल लिखते समय. यूज लार्ज फॉन्ट. व्हेन आई से लार्ज फॉन्ट, टिपिकली यूज Cambridge 12, Tahoma 12. Avoid Arial, avoid Times New Roman, avoid any other font. Okay, Cambria is a and Tahoma are mostly accepted, widely followed font in the world of research. Arial ये लॉयर लोग यूज करते हैं, और टाइम्स न्यू रोमन यूनिवर्सिटी में यूज होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में.
So select 12, heading 12 bold, no underlining, and remaining is मतलब आपके इसमें वैरायटी, आपका टाइटल 14 बोल्ड, सब सेक्शन के हेडिंग 12 बोल्ड, बचा हुआ 12, लंबे टेबल है 11, कैलिब्री 11, 10 के ऊपर 10 के नीचे जाओ मत फॉन्ट पे। देन सब हेडिंग स्पेसिंग रखिए प्रॉपर, टिपिकली स्पेसिंग सिंगल मत रखिएगा, 1.25 रखिएगा, शायद थीसिस के लिए यूनिवर्सिटी 1.5 बोलती है। सो 1 कंजेस्टेड हो जाता है, 1.25 इज अ फेयर स्पेसिंग। हाई क्वालिटी फिगर, कई बार रिसर्चर क्या करता है, वेबसाइट से डाउनलोड करके हम डालते हैं एक आधी फिगर, तो अगर आप कहीं से कॉपी करके फिगर डाल रहे हो विद दी सोर्स, तो उसको फोटोशॉप में लेके उसका रिजोल्यूशन चेंज करो, क्योंकि किसी कॉपी किए हुए फिगर को जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो उसके अंदर का टेक्स्ट वगैरह जो भी होता है वो ब्लर हो जाता है, या तो फिर आप खुद बनाइए वो, हाँ, और वो उसे इस्तेमाल कीजिए। ऑथर डिफाइन एक्रोनिम का इस्तेमाल मत करो, ये शॉर्ट फॉर्म जो लिखते हैं ना आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे वगैरह, वो अवॉइड करना है। प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन और द पोटेंशियल पिटफॉल, अगर कुछ आपको लगता है कि दिक्कतें आएगी तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा वो बताइए। बजट सिंपल रखिए, जो मैंने आपको बोला था। एब्स्ट्रैक्ट इज द की, वर्क ऑन इट, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आपका सही नहीं है तो आपका पूरा जो है होता है। अब हमें जो इनपुट मिलते हैं रिव्यूअर से, उन्हीं से बात करके मैंने आपके लिए लिखा है कि क्यों रिजेक्ट होते हैं प्रपोजल। सबसे पहला, पुअरली रिटर्न, सही तरीके से लिखा नहीं गया है। देन whatever topic is in the proposal is not a scientific problem, it is not based on experimental, it does not follow the program priority or relevance, and there is no convincing preliminary data, ये भी कई बार पूछा जाता है। हाइपोथेसिस नहीं है या लिखा है तो अच्छा नहीं लिखा है, और डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव डोंट एड्रेस हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टू डिफ्यूज। कल जो मैंने आपको बोला था, टाइटल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये अगर आप पीएचडी थीसिस में मास्टर कर लोगे तो ये काम करना आपको आसान हो जाएगा। बट कई बार जो लोग सही तरीके से काम नहीं करते तो उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने जो भी अप्रोच या मेथड दी है वो डिटेल में नहीं दिया हुआ है, जिससे कि सक्सेस को इवैल्यूएट किया जा सके। इन्वेस्टिगेटर को उस पर्टिकुलर अप्रोच या मेथड का अनुभव नहीं है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक तो प्रेजेंट किए बट इंटरप्रिट नहीं किए, नहीं तो प्रेजेंट भी नहीं किए, इंटरप्रिट भी नहीं किए। पिटफॉल जो है वो नहीं बताए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं प्रेजेंट किया गया, बहुत एम्बिशियस है, टू डिफिकल्ट है रीजनेबल टाइम फ्रेम में कंप्लीट होना, अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है कंप्लीशन के लिए। रीसबमिटेड प्रपोजल, कई बार क्या होता है, सम एजेंसीज आर वेरी जनरस, वो आपको बोलती है कि ये चेंजेस आप कीजिए और अगले साल सबमिट कीजिए, तो रिसर्चर क्या करता है, उसको कहीं पर रख देता है, अगला साल जब आएगा तो फिर से वही भेज देता है। नहीं, आपको अगर कमेंट आती है तो आप डेस्कटॉप पे 2022 का फोल्डर बनाओ, वो पूरे चेंजेस उसमें अकोमोडेट करो, और उसके बाद अगले साल जब आएगा वो फोल्डर खोल के वो ईमेल से अटैचमेंट भेज दो, राइट। सो रीसबमिशन कई बार करना पड़ता है। पेटेंट आयपीवर भी येणार नाही, हे आपल्या याचा भाग नाही आहे हा। सो ये हो गया अपना हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल फॉर द ग्रांट। याच्यावर काही प्रश्न असतील तर विचारा, नाही तर मग आपण इथिक्स चालू करू आणि इथिक्स संपल्यावर सगळे प्रश्न एकत्रित घेऊ, चालेल का? म्हणजे मग आपल्याला 1 तास इथिक्स करता मिळेल। ओके, सो I will switch to the ethics part. दिख रहा है आप सबको ये? यस सर, विजिबल है। ओके, सो अभी जो रिसर्च
ग्रांट के बारे में जो पढ़ाया उस पे 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल का पहला सेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च प्रोसेस और ये इथिक्स का, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इन 2 टॉपिक पे ज्यादा सवाल आने की गुंजाइश है। ठीक है, आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और ग्रांट पे 1 या 2 ही सवाल आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टन्स ऑफ इथिक्स इन रिसर्च अँड पब्लिकेशन। इथिक्सला आपण नैतिकता म्हणतो मराठीत और मोरालिटी और इथिक्स भी अदल बदल के इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ प्रॉब्लम इज दैट आई बिफोर कमिंग टू द प्रॉब्लम, इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। ये मॉरल फिलोसॉफी की एक ब्रांच है, एंड मोरालिटी एंड इथिक्स they are the two sides of a same coin. The problem with ethics is that it cannot be taught but can only be practiced. हम्म? ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि वो इंजेक्शन लेने से आप इथिकल हो जाओगे। अभी कई यूनिवर्सिटियों में दुनिया में, इंक्लूडिंग अवर नागपुर यूनिवर्सिटी ऑल्सो, एमबीए के करिकुलम में, बीबीए के करिकुलम में ये डाला गया है पिछले 8-10 साल से, ताकि बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इथिक्स के बारे में पता चले। पण मी तर म्हणतो 5वी पासून हा विषय टाकला पाहिजे। हायस्कूल म्हणजे तो 5वी ते 10वी आणि 11वी 12वीला सुद्धा त्याला इथिक्स कळलं पाहिजे, नैतिकता है ना, ही येत नाही। सो सवाल ये आता है, इथिक्स हम कहाँ से सीखते हैं? एनी गेस, एनी आइडिया, वेयर डू वी लर्न अवर इथिक्स फ्रॉम? घर से ही सीखते हैं सर। फैमिली, फैमिली, then करेक्ट। Our upbringing in the childhood, we try to observe our parents, our siblings, our friends, our neighbors, our relative. In the school, we observe our friends and teacher. तो वहां से आपका एक इथिकल फाउंडेशन बनने की शुरुआत होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी एक कलीग है, उसको 4 साल की बेटी है। तो मैं उनके घर में गया था, कुछ एक फैमिली रिलेटिव है वो हमारी, कुछ फैमिली फंक्शन में हम गए थे। तो मैं जरा जल्दी पहुंच गया, तो वो मेरे जो कजिन थी उसको फोन आया मोबाइल पे। तो उसने फोन उठाया और फोन पे बताया कि वो घर में नहीं है, वो बाहर है किसी काम में, और उसने फोन काट दिया। तो वो जो 4 साल की मेरी नीस थी, उसने उसके मम्मी को पूछा, मम्मी आप तो घर पे हो और आपने फोन पे क्यों बताया कि आप घर पे नहीं हो? अब वो जो छोटी 4 साल की बच्ची है, वो डिलेमा में आ गई की मेरे मम्मी ने झूठ क्यों बोला। आता खरं बोलणं आणि खोटं बोलणं, खोटं बोलणंही चांगलं असतं, पण कोणत्या परिस्थितीत तुम्ही खोट्याचा वापर करता, तुम्हाला जर एखाद्याला अवॉइड करायचं असेल तर तुम्ही खोटं बोललं तर दॅट इज ओके, पण तुम्ही खोटं बोलून कोणाचा विश्वासघात करत आहात किंवा कोणाचा फायदा घेत आहात किंवा गैरफायदा घेत आहेत, तर ते खोटं बोलणं हे व्यवस्थित नाही। म्हणून ethics is a very fluid and complex matter which is there in our brain. जब से हम उठते हैं सोने तक हम 16 घंटे यही डिसाइड करते हैं क्या सही और क्या गलत। इथिक्स का मतलब ही वही है, द डिफरेंशिएशन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, राइट? सो द अनदर प्रॉब्लम विथ इथिक्स इज दैट any person who is ethical can immediately become unethical, and any person who is unethical can transform into ethical. वाल्या वाल्या कोण होता? वाल्या चोर होता, वाल्याचा वाल्मिकी झाला है ना, आणि आपल्या भारताच्या राजकारणात किती साऱ्या वाल्मिकींचे वाल्या झालेले आहेत। तर ते राजकारण आहे असो। सो both way transformation is possible, and hence
इथिक्स हा विषय मला जिव्हाळ्याचा याच्याकरता आहे कारण भारतामध्ये जे 264 250 UPSC ची परीक्षा पास करून IAS कॅडर मध्ये येतात त्यांना कधी कधी मला शिकवायचा हा विषय शिकवायचा मला मौका येतो. पुण्याला मला शिकवावं लागतं आणि ते मोठे साहेब होतात. नैतिकता नंतर मध्य भारतातले जेवढेही मोठे सरकारी अधिकारी आहेत त्यांना हा मी नियमित पद्धतीने हा विषय शिकवतो. आता लॉकडाऊनमुळे सध्या बंद आहे पण हा विषय शिकवणं अतिशय महत्वाचं आहे कारण डे टू डे लाईफ मध्ये सगळ्यांच्या कामात येतो. बट टुडे वी विल ओनली टॉकिंग अबाउट रिसर्च कि काम करते समय हमें इथिक्स के बारे में अवेयर होके काम कैसे करना है. आप में से जिन लोगों के एम्बिशन होंगे कि वो एकेडमिक वर्ल्ड में आगे आना चाहते हैं, वाइस चांसलर बनना चाहते, प्रो वीसी बनना चाहते, रजिस्ट्रार बनना चाहते, मेक युअर ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन राइट फ्रॉम टुडे. आज हम इन्फॉर्मेशन एज में है. माहितीच्या अधिकारात सगळ्या गोष्टी पाहिल्या आणि तपासल्या जाऊ शकतात. म्हणून उद्या जर तुम्ही मोठ्या पदावर गेले आणि तुमच्या नैतिकतेवर जर तोषले ओढले गेले तर तुम्हाला त्या पदाचं जास्ती वजन वाटायला लागेल. ये एक केस हुई थी जो शायद इंडिया की पहली केस थी. पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की एक वाइस चांसलर अपॉइंट हुई थी और उसने कुछ टेंडर वगैरह निकाला था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का. तो स्टूडेंट यूनियन ने वो टेंडर में गड़बड़ी होने के कारण प्रोटेस्ट किया. तो वीसी मैडम ने नहीं सुना स्टूडेंट का. तो स्टूडेंट ने उनका बायोडेटा निकाला. वो बायोडेटा पे एक श्रीलंका की PhD की डिग्री लिखी थी. स्टूडेंट लोगों ने वो श्रीलंका की यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया तो पता चला वो मैडम के पास ऐसी कौन सी डिग्री नहीं थी. वो फेक डिग्री थी, मतलब डिग्री थी नहीं, वो फेक लिखा गया था. देन उनके लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन में एक पेपर ऐसा छपड़ा जो एक स्टूडेंट ने वो मैडम को रिव्यू करने दिया था तो मैडम ने वो अपने नाम पे छाप लिया था. वो स्टूडेंट ने ये 2 कंप्लेंट लेके वो गए. चांसलर जो तमिलनाडु में बैठे थे उस समय वो नागपुर के थे, पुरोहित साहब. उसी रात को वीसी मैडम को निकाला गया. क्यों? क्योंकि उसने अपने बायोडेटा पे गलत लिखा था और उसने दूसरे का पेपर अपने नाम पे पब्लिश किया. दॅट्स इट. नैतिकता. तर म्हणून मोठ्या पदावर जर जायचं असेल तर अकॅडमिक्स मध्ये नैतिकता. राजकारणात जायचं असेल तर मग काही फरक पडत नाही, तुम्हाला सगळेच पक्ष क्लीन चिट देतात, तो भाग वेगळा. आपल्याला या फील्डमध्ये राहायचं असेल नैतिकता. आणि जरी सामान्य माणूस म्हणून जगायचं असेल तरी नैतिकतेचं पालन करणं आवश्यक आहे. कारण मी कर्मावर बिलीव्ह करतो. तुमचे कर्म चांगले असतील तर चांगलं होतं. तर एक हिंदी मधलं एक गाणं आहे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही आना है. भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है. हे ज्यांना कळलं मग तिथे राग लोभ या सगळ्या गोष्टी दुय्यम असतात. 24 तास जगणं, कामं करणं, लोकांसोबत राहणं, त्यातही नैतिकतेचं पालन करणं हे गंभीर टास्क असतं. बरेचदा आपण चुकही होऊ शकतो पण 51% वी हैव टू बी ऑन द राइट साइड. ओके. नाउ प्रॉब्लम क्या है? ये दुनिया का प्रॉब्लम है, ये इंडिया का नहीं है. जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं इनको इथिक्स के बारे में रिसर्च में ट्रेनिंग नहीं दी जाती. एकदा मी एका विद्यापीठातल्या एका कुलगुरूंना म्हटलं होतं, साहेब आपण नैतिकता शिकवायची का मुलांना संशोधन करायच्या आधी? मग ते काही त्यांना पटलं नाही. हे कुठेच होत नाही असं. सो ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है. जो स्टूडेंट होते हैं उनको उनके जो गाइड होते या फैकल्टी होते हैं वो मेंटर करते हैं थोड़ा इथिक्स के बारे में, बट इट इज पुअर मेंटरिंग. तुम्हाला तुमच्या गाईडनी सांगितलं का हो नैतिकतेबद्दल? एखाद्याने सांगितलं असेल पण फार क्वचित असं सांगतात.
कारण त्या गाईडला स्वतःलाच इथिक्सचं एज्युकेशन नसतं. हं? आणि ज्या काही लॅबोरेटरीज आहेत जिथे कामं केली जातात, हं? तिथे हे जे विजडम असतं ते विजडम हे फार लूज फॉर्मॅटमध्ये एका म्हणजे लूज फॉर्मॅटमध्ये एका बॅचकडनं दुसऱ्या बॅचकडे हे पाठवलं जातं. आणि हे जे इथिकल स्टँडर्ड असतात दे ऑल्सो डिफर वाइडली फ्रॉम लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी. सो कोई भी ऐसा टेंजिबल नहीं है कि जहां पर इथिकल गाइडलाइन से जो है 100% काम हो सकता है. हे लक्षात ठेवा बरं का, हे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. हे 6 प्रिन्सिपल आहेत, प्रिन्सिपल्स ऑफ इथिक्स. आता द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स इज अ ट्रूथ. अब मुझे बताइए व्हाट इज सो यूनिक अबाउट ट्रूथ. सांगा बरं. अब पार्टिसिपेशन बढ़ाओ. कल आपका पार्टिसिपेशन अच्छा था, आज थकून गेले का तुम्ही? आज फक्त सुमन आणि आलोकच बोलतोय. बोला, बाकीचे लोकही बोला. व्हाट इज यूनिक अबाउट ट्रूथ. क्या है खूबियां सच्चाई की? ये कभी चेंज नहीं होता है सर. वेरी गुड किसी भी महेश, परिस्थिति में वेरी गुड, चेंज नहीं होता है. ट्रूथ किसी भी वेरी परिस्थिति गुड, में चेंज नहीं होता है. वेरी गुड अविनाश. और सर याद नहीं रखना पड़ता कि क्या मतलब झूठ बोले तो याद रखना पड़ता है. ट्रूथ का हमेशा रहेगा. संगीता गुड, वेरी गुड. अजून अजून करेक्ट करेक्ट झूठ के बाद में बहुत सारे झूठ बोलना पड़ता है. बराबर है, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. तो सच्चाई की खासियत ये है, नंबर 1, ट्रूथ इज एब्सोल्यूट. मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. मैं ये नहीं बोल सकता कि किशोर कुमार चौधरी 90% सच्चा है और चंद्रशेखर डेठे सर 85% सच्चे. नो, ट्रूथ इज एब्सोल्यूट. ओके. अभी मोहिनी ने लिखा इट ऑलवेज कम्स आउट. वेरी ट्रू. आप कितना भी उसे छुपाने की कोशिश कीजिए, सच्चाई ये बाहर आती है. हे लक्षात ठेवा बरं का. जैसे आप वो टीवी पे क्राइम पेट्रोल सतर्क वगैरह देखते होगे ना, मेरा वो फेवरेट प्रोग्राम है बाय द वे, उससे टेंशन कम होता है. तो वो क्या बोलता, वो क्रिमिनल पकड़ा ही जाता है, एंड में तो वही होता है ना. मग कशाला करायचा गुन्हा? पकडला जाणार असेल तर गुन्हा का करायचा? एनीवे, आपने कितना भी कुछ किया ना, आपको लग रहा होगा कॉलेज में आपका बारीक में किसी से चल रहा है लफड़ा, व्हाट्सएप की आप में एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, आपके बीवी को 10 साल से मालूम नहीं है. ठीक है, एक दिन पता चलेगा, और जिस दिन पता चलेगा वो बहुत महंगा पता चलेगा. तो अगर हिम्मत है तो आज ही जाके आपकी बीवी या पति को बता दो मेरा है अफेयर, जो करना है अभी कर ले. कैसा होता है ना, सच्चाई ये बाहर आती मतलब आती, और जिस वक्त ये आती है उस वक्त आप बड़े पोजीशन पे होते हो और आपको वो हॉन्ट करती है. मैं आपको अभी सर सत्यमेव जयते सर. नाही, ते येतो ना मी त्याच्यावर. भारत, तुम्ही माझ्या तोंडातलं वाक्य घेतलं पद्माजी. भारत हा इकलौता देश आहे जगातला जिसके एम्बलम पे 3 टाइगर है और वो स्लोगन है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज विंस. और इसीलिए आप देखिए, हम लोग जब छोटे थे, मैं अभी 50 साल का हूं, हमने जो उस जमाने में पिक्चरें देखी या टीवी सीरियल देखी, उसमें निचोड़ क्या होता था, द ट्रूथ ऑलवेज विन. विलन की मौत हो जाती है, विलन मारा जाता है और सच्चाई के रास्ते पे चलो. त्या काळी टीव्हीवर बुनियाद, हम लोग, रामायण, महाभारत या प्रकारच्या सिरियल यायच्या. आता टीव्हीवर कोणत्या सिरियल येतात, माझ्या नवऱ्याची बायको, भाभीजी छत पे है, जीजाजी घर पे है. हाँ, अभी का जमाना ही अलग है, पर वो जमाने के साथ टीवी भी वैसा बदल रहा है, क्या करेंगे. सो ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, ये याद रखो. आपको लग रहा होगा कि मैं कट पेस्ट करके ये वो करके इधर उधर कर लूंगा, ठीक है, बट अगर गलती से आप वाइस चांसलर बन गए और कोई आपके दुश्मन को पता चला कि 2021 में आपने थीसिस जमा किया था, वो खोल देगा. उस समय तो बहुत हाई एंड प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर आए होंगे, तो आप पत्रकार परिषद ले लेगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. त्याच्यामुळे ना
मी हे नाही म्हणत की फक्त व्हीसी बनायचं आहे म्हणून तुम्ही कॉप्या नका करू, काहीच नाही करायचं. आपल्याला जेवढं जमतं तेवढं करायचं. आपल्यातल्या ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटी भरून काढायचा प्रयत्न करायचा आणि दुसऱ्याकडनं शिकायचं. जैसे किसी ने बोला कि एक झूठ बोलने के बाद 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, मुझे वो कतई पसंद नहीं. मैं सामने से बोल देता हूँ, सब नहीं जमेगा, नहीं पटक. तो एक बार उसको बुरा लगेगा, वो ठीक है, बट आप अगर वो बार बार झूठ बोलते गए ना तो फिर आप खुद तकलीफ में आओगे. तो सच्चाई ये बाहर आती है. हा इथिक्सचा तुम्ही काही बघा, मला तुम्हाला उदाहरण द्यायचं होतं. 2014च्या निवडणुकीच्या वेळेस आपल्या भारतातल्या माननीय HRD मिनिस्टर ज्या होत्या, काय नाव त्यांचं, वो मॅडम कोणसी आहे वो, टेक्सटाईल, स्मृती इराणी. हा, इराणी मॅडमने तुम्हाला एक फॉर्म भरावा लागतो. तो इलेक्शनच्या वेळेस तिने फॉर्म भरला होता, त्यावेळेस तिने दिलं होतं काहीतरी BA की BSc झाली आहे ती. आणि त्यावेळेस ती HRD मिनिस्टर होती बरं का. 2019ला तिने जो फॉर्म भरला तर तिने लिहिलं ती फक्त 12वी पास आहे आणि जे काही ते BA BSc आहे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं करस्पॉन्डन्स अँड कंटिन्यू. पकडा गया उसका झूठ. इव्हन आपल्या प्रधानमंत्री जेव्हा 5 वेळा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी कधीही ऍफिडेव्हिट मध्ये दिलं नव्हतं की त्यांचं लग्न झालेलं आहे. पण जेव्हा ते प्रधानमंत्रीच्या पदासाठी बीजेपीने सांगितलं होतं की ते ज्यावेळेस त्यांनी अर्ज भरला त्यावेळेस ते मला वाटतं बरोडा आणि वाराणसीमधनं दोन्हीकडनं उभे राहणार होते. त्यात त्यांनी लिहिलं माझं लग्न झालेलं आहे. तेव्हा बऱ्याच लोकांना कळलं की मोदी साहेबांचं लग्न झालेलं होतं. तो होतं काय, तुम्ही जेव्हा मोठ्या पदावर जाता तुम्हाला एक तर ऍफिडेव्हिट अँड डिक्लेरेशन द्यावं लागतं आणि मग त्याच्यानंतर हे गोंधळ येत नाही. तर मग आपल्या महाराष्ट्रातला आत्ताचा गोंधळ तुम्हाला माहिती आहे, धनंजय मुंडे साहेबांचा 2 बायका, गॉड नोज, एनिवे दॅट इज नॉट अवर टॉपिक टुडे. तो पब्लिक फिगर तुम्ही असाल तर ऍफिडेव्हिट देतात, त्याची स्क्रुटिनी होतं, बऱ्याच गोष्टी होतं. नसाल, जरी आपण सामान्य माणूस असू ना तरी आपण खोटं नाही बोलायचं. इट इज बेटर टू बाइट द बिटर ट्रूथ. सच्चाई का आपको सामना करना ही पड़ेगा. आप देखो कई बार डॉक्टर सुद्धा दिलासा देतात पेशेंटला, चल तेरे पास 6 महीने है, 8 महीने. कोई डॉक्टर ऐसा बताएगा नहीं, अरे कल तू टपकने वाला है. वो डॉक्टर बता ही नहीं सकते, तो वो मेडिकल प्रैक्टिस के भी खिलाफ है. होप जो बोलते ना, दुनिया होप पे चलती. बट देर आर सर्टन डॉक्टर्स विच आर, जिसको बोलेंगे प्रैग्मेटिक बोला या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, वो बोल देते कि आपने ऐसा ऐसा किया तो इतने दिन में आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है, आप मर सकते हो. तो ट्रूथ इज देयर. सेकंड इज अ फ्रीडम, स्वातंत्र. आपको RRC कमिटी ने फ्रीडम दिया हुआ है आपका PhD थीसिस पे काम करने के लिए. वो 5 साल का फ्रीडम दिया गया है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है. सिर्फ शायद आपको हर साल में या साल में 2 बार प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना पड़ता है PhD सेल को. बियॉन्ड दैट दे डू नॉट आस्क यू एनीथिंग. यू हैव बीन गिवन फुल फ्रीडम टू परस्यू युअर रिसर्च. स्वातंत्र्य महत्वाचा घटक आहे. आणि स्वातंत्र्य कोणाला दिलं जातं? जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं को फ्रीडम मिलता है. इरिस्पॉन्सिबल लोगों को फ्रीडम नहीं दिया जाता. अगर आपके घर में आपकी बेटी है, आपके घर का नियम है कि शाम को 7 बजे से पहले घर आने का, आपकी बेटी पिछले 5 साल से ये कर रही है और कल आके आपकी बेटी बोलती कि मम्मी मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं रात को 10 बजे घर आऊंगी, मैं जाऊं क्या? आपको एज ए पेरेंट, एज ए मदर उसे जाने देना चाहिए, बिकॉज शी वॉज रिस्पॉन्सिबल वाइल शी वॉज हॅव्हिंग अ फ्रीडम. म्हणून एक लक्षात ठेवा, तुमच्या कॉलेजमध्ये काही फॅकल्टी असतील जे बारीकमध्ये गायब होऊन जातात. वो प्रिंसिपल विचारतात, अरे कहाँ गए, ऐसे 1-2 आइटम रहते हर कॉलेज में. पर जो रिस्पॉन्सिबल लोग रहते, जो एक आध बार गायब हो गए तो कोई हल्ला गुल नहीं होता. उनको मालूम है ये कहीं ना कहीं होगा इस कॉलेज में.
ज्यादा से ज्यादा एखादा, और वो भी बिचारा जाने से पहिले बता के जाता है की माझ्या सासऱ्यांना ऍडमिट करायचं आहे, नाही तर तहसील कार्यालयात जायचं, बता के जाता है. सो फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड. ओके, विथ फ्रीडम यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल. मतलब आपको आरआरसी ने फ्रीडम दिया है, आपने कट पेस्ट कर लिया और बिना कुछ किए थीसिस जमा लिया किसी को पैसे देके प्रिंट करा के, दैट विल बी हायली इरिस्पॉन्सिबल. अशा केसेस होतात बरं का, सगळीकडे होतात, जगात होतात, मी नाही म्हणत, तर ते करू नका. फोर्थ प्रिंसिपल इज इंटीग्रिटी. ये समझाने में मुझे कई बार दिक्कत जाती है की इंटीग्रिटी म्हणजे काय. तर त्याला दोन शब्दात सांगतो, एकात्मता, एकनिष्ठता. आता एकनिष्ठता म्हणजे काय, जो एकलव्य था, जिसको द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं धनुर्विद्या नहीं पढ़ाऊंगा, तो उसने द्रोणाचार्य जी का पुतला बनाया और धनुर्विद्या मास्टरी कर ली. ती गोष्ट वेगळी की द्रोणाचार्यांनी गुरुदक्षिणा म्हणून त्याला अंगठा मागितला, तो भाग वेगळा. पण तो एकनिष्ठ होऊन त्यांनी ती धनुर्विद्या अर्जित केली. तुम्हाला सुद्धा पीएचडीचा प्रबंध करताना तुमच्या विषयाशी एकनिष्ठ राहायचं आहे. तन मन धन लावून ते काम करायचं आहे बरं का. इंटिग्रिटी हा झाला पीएचडीचा भाग. रिसर्च करताना सुद्धा आप कभी भी कौन सा भी रिसर्च करोगे, यू हैव टू बी डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. शॉर्टकट लेके काम करने का नहीं, महंगे पड़ते ये याद रखो. The fifth principle is of professionalism, व्यावसायिकता. आपका थीसिस, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का रिपोर्ट, इट शुड लुक स्टेट ऑफ द आर्ट एंड हाईली प्रोफेशनल, जीरो मिस्टेक और सब जगह प्रोफेशनलिज्म का डेमोन्स्ट्रेशन. तो आपका काम करने का स्टाइल, काम रिप्रेझेंट करने का स्टाइल, काम प्रेझेंट करने का स्टाइल, या सगळ्यामध्ये व्यावसायिकतेचं दर्शन असलं पाहिजे. बरेचदा मी व्हायवामध्ये बघतो, थीसिस अतिशय सुंदर असतो, पण तो डिफेंड करणाऱ्याला काही माहिती नसते. मग आम्हाला आयडिया येते की ये गड़बड़ी में इसने कुछ किया है, एक तो उसने पढ़ा नहीं है या कहीं से जमाया है, या ये भूल गया है, ये नर्वस है. तर ते व्यावसायिकता सगळ्या लेवलवर दाखवता आली पाहिजे. फिर आता है कोलैबोरेशन. अभी 21st सेंचुरी में बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी घर में बैठा हूँ, आप लोग भी घर में बैठे हैं, तो वी आर कोलैबोरेटिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ लेक्चर. आजकल रिसर्च, क्रॉस बॉर्डर रिसर्च होता है और आप कोलैबोरेट करते हो इन पर्सन या इन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या बाय डिस्टेंस. तो आपको कोलैबोरेट करते समय आपको इथिकल प्रिंसिपल फॉलो करने हैं. वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. सर यू आर इसका नॉट मतलब- ऑडिबल सर, आवाज नहीं आ रही है सर. आ रही है क्या आवाज? एम आई ऑडिएबल? यस सर. सर आ रही है सर आवाज. We can hear you, ma'am, sir. आपको कोलैबोरेट करते समय ये ध्यान देना है कि आपके टीम के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको फेथ में लेके काम करना है, उनका विश्वासघात नहीं करने का है. वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. तो ये 6 प्रिंसिपल अच्छे से याद रखो. नाउ इथिकल स्पीयर मतलब क्या? अब प्रॉब्लम इथिक्स का ये है कि आप अनइथिकल हुए तो आपको कोई जेल में नहीं डालेगा. गव्हर्नमेंट अनइथिकल ऍक्टिव्हिटीला मिसकंडक्ट म्हणतं आणि आपण रिसर्चर त्याला अनइथिकल म्हणतो. तुम्ही जर काही केलं तर जेल कोणाला होत नाही अनइथिकल असाल तर. पण प्रॉब्लेम हा आहे की याच्यावर शिक्षा होत नाही, फक्त पब्लिसिटी होतात आणि लोक विसरून जातात. सो प्रॉब्लम है कि जिसको गवर्नमेंट मिसकंडक्ट डिफाइन नहीं करती वो बेसिकली अनइथिकल होता है. अब कुछ अदर डेविएशन होते हैं जिसको भी हम अदर डेविएशन या सो कॉल्ड अनइथिकल बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, publishing the same paper in 2 different journals without telling the editor,
याच्यात कोणाला फाशीची शिक्षा तर मिळत नाही, पण हे चूक आहे का? हे चूकही नाही आणि बरोबरही नाही, पण हे डेव्हिएशन आहे, हे कुठेतरी अनइथिकल आहे. सबमिटिंग द सेम पेपर टू 2 डिफरंट जर्नल विदाउट टेलिंग द एडिटर. मग ही चूक नसेल व्हायची तर काय करायचं साहेब? कैंडिडेट को लगता है कि उसका पेपर मैक्सिमम जगह पब्लिश हो, तो वो 5-6 जर्नल को अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजता है और उसमें से 3 जर्नल उसको बोलते हैं पेपर भेज. आगे से आप क्या करो, अब क्या हुआ अगर तीनों में से दोनों ने आपका पेपर छप गया तो आपका हो गया पेपर 2 जर्नल में, एक ही पेपर, विच इज अनइथिकल. तो पुढच्या वेळेस काय करायचं, वाइल सेंडिंग पेपर, बोलना कि द रिसर्चर इज ऑल्सो सेंडिंग पेपर टू जर्नल ABC and XYZ. If you think my work is of value to your journal, kindly let me know the date of publication so that I will withdraw my publication offer from journal ABC and XYZ. ये तीनों को ऐसा भेज देना, मतलब उनको भी पता चलता है कि ये पेपर 2 जगह गया हुआ है, और अगर एक ने बोला हाँ मैं पब्लिश करता हूँ तो बाकी 2 को एक ईमेल डाल देना, the said paper has been accepted for publication by journal PQR and hence I would like to withdraw my publication request. I shall be in touch with you in the future editions of your prestigious journal. It was pleasure. काय 4 वाक्य लिहिलं की काय होतं? काही होत नाही. हे आपल्या प्रॅक्टिस मध्ये आणायचं बरं का. हे नाही केलं तरी काही होत नाही, पण हे केलं तर जरा जास्ती चांगलं असतं. अब जो कोलैबोरेशन में जो बोला ना, कई बार लोग कोलैबोरेट करते समय दूसरे को बिना बताए पेटेंट अपने नाम पे ले लेते, विच इज अनइथिकल. दुसरा मुद्दा अजून महत्वाचा आहे, जे सगळे लोक करतात, मी सुद्धा करून चुकलो आहे. इंक्लूडिंग अ कलीग एज एन ऑथर इन अ पेपर इन रिटर्न फॉर अ फेवर. मतलब मैं एक पेपर लिखूंगा, उस पर विजय रंगारी का नाम डालूंगा, विजय रंगारी एक पेपर लिखेगा, मेरा नाम डालेगा. हे व्हायचं. आता सोलो पेपर आले आहेत साहेब, आता UGCने नॉर्म बदलले आहेत, आता फक्त सोलो पेपर. इवन तुम्ही आता जे काही पेपर लिहितात, तुमचा गाईड म्हणतो मेरा नाम डाल, मजबुरी होकर डालना पडता है. पण जो गाईड नैतिकता समजत असेल त्यांनी म्हटलं पाहिजे बाबा मी काम केलं नाही, मला याच्यावर माझं नाव नको. अशा लोकांना मी भेटलोय, आहेत असे लोक. तो वो नहीं करने का. एग्जाम मध्ये प्रश्न आला तर उत्तर इथिकल वालाच उत्तर द्या बाबा, जे करताय ते उत्तर नका देऊ, नाही तर नापास व्हा. देन डिस्कसिंग विथ युअर कलीग कॉन्फिडेन्शियल डेटा फ्रॉम द पेपर दॅट यू आर रिव्हिंग फॉर द जर्नल. मी 4 जर्नलच्या एडिटोरियल बोर्डवर आहे, तो आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस एनी डेटा फ्रॉम द पेपर जो मैं रिव्यू कर रहा हूं, जो पब्लिश नहीं हुआ है. देन यूजिंग डेटा आइडिया और मेथड यू लर्न अबाउट व्हाइल रिव्यूइंग अ ग्रांट. अब अगर मैं रिव्यूअर हूं और मेरे को एखादे प्रपोजल में एखादी मेथड पसंद आ गई और वो मेथड मैंने स्टूडेंट को बोला कि ये मेथड पे काम कर, अनइथिकल. ट्रिमिंग आउटलायर फ्रॉम द डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजंस इन पेपर और रिसर्च. आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया या कोई डेटा प्लॉट किया इन्वर्टेड बेल कर्व में, और आपने जो 2 टेल का डेटा आता है, राइट टेल एंड लेफ्ट टेल, वो आपने काट दिया बिना डिस्कस किए. नका करू. जसं येतं तसंच्या तसं मांडा, तिथे नोट देऊन द्या. या पॅरामीटरवर रन केलेला एक्सपेरिमेंट हे रिझल्ट देत आहे, दॅट्स इट. बरेचदा लोक काय करतात, त्याला चांगलं दाखवण्यासाठी आउटलायर डेटाला कापून टाकतात. देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग इन appropriate statistical technique to enhance significance of your research. अरे बाबा, तुम्ही एक रिसर्च केलं, त्याचा हायपोथिसिस तुम्हाला टेस्ट करण्यासाठी समजा एक टेस्ट लावायची होती. तुम्ही काय केलं, तुम्ही टेस्ट B लावली आणि त्याच्यामध्ये तुमचा हायपोथिसिस आणि त्याचा सिग्निफिकन्स वाढला. बट इनफॅक्ट काय आहे, तुम्ही चुकीची टेस्ट लावली. त्याला चूक नाही म्हणत, शब्द काय आहे, इनएप्रोप्रिएट. इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, अगर अभी बात करता हूं. आप लोग आपके PhD थीसिस में जितने हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल टूल से टेस्ट करेंगे,
प्रत्येक हायपोथिसिसला किमान 3 टेस्ट लावा, अनलेस एंड अनटिल यू आर गॉड डैम श्योर कि ये डेटा को यही टेस्ट लगती है। और वहां लिखने का, given the nature of data, the researcher have proposed the 3 tests, and based on the outcome of the 3 tests, the indication is that the 2 tests are pointing towards acceptance of the null hypothesis, and hence the researcher conclude that null hypothesis is true and valid. किती छान वाटतं असं ऐकायला. नाहीतर कोणत्या भलत्याच्या भलत्या टेस्ट लावते, त्याला कळत नाही कोणता डेटा, त्याला भलती टेस्ट. हे करू नका रे बाबा. एखाद्या तज्ञ स्टॅटिस्टिशियनला जाऊन भेटा, समजा कोणत्या डेटाला कोणती टेस्ट लागते, कशी लावायची, पी टेस्ट लावायची, टी टेस्ट लावायची, 1 टेल लावायची, 2 टेल लावायची. सी, स्टैटिस्टिक्स आर दी टूल, उसका इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए. जैसे आपके किचन का चक्कू है, उसका इस्तेमाल है नींबू प्याज कोथिंबीर सब्जी काटने का. आपको अगर आपके पति और पत्नी को टपकाने का है उसे, तो वो भी आप कर सकते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स भी टूल है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको आना चाहिए. त्याच्याकरता मेहनत घ्या. तुम्हाला 5 ते 6 महिने मेहनत लागेल. पण तुम्हाला पुढे रिसर्च करायचं असेल तर ते ब्लेसिंग आहे. मग ते एकदा स्टॅटिस्टिक्स समजलं ना की मग त्याच्यासारखा आनंद नाही आहे. कारण होतं काय, तुम्ही सगळं व्यवस्थित केलं आतापर्यंत आणि चुकीच्या टेस्ट लावल्या, तुम्ही गेलं तुमचं रिसर्च पाण्यामध्ये. मग म्हणून मी काल जो फ्लोचार्ट दाखवला होता रिसर्चचा, प्रत्येक स्टेपवर चुका झाले की रिसर्च संपतो. एव्हरी स्टेप इज इम्पॉर्टंट, राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ एरिया अप टू कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन. इसीलिए किसी भी स्टेप पे गलती नहीं होना चाहिए. पीएचडी में कई चीजें माफ आहे बरं का. जगामध्ये गाईड आणि एक्सटर्नल एक्झामिनर वगैरे खूप दयाळू असतात, देतात तुम्हाला डिग्री ती. अहो पण सन्मानाने घ्या ना ती डिग्री. तिथे ताठ मानेनी जा ना, सांगा ना की मी असं काम केलंय साहेब, हे माझ्यासोबत झालं होतं, मी अत्यंत चांगलं काम केलं होतं माझ्या स्टँडर्डने. आणि मग ते जे आले होते परीक्षक ते म्हणे मी तुमची परीक्षा मी घेऊ शकत नाही, तुमच्या कामावरनं मला कळलं आणि 10-15 मिनिटात सगळा कार्यक्रम संपला आमचा. तो म्हणे मी तुम्हाला प्रश्नच विचारू शकत नाही. आणि मी ते फुल टाइम केलं होतं. तुम्ही डेडिकेशन, आपका काम एक भी स्टेप पे एक भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए. तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट टेस्ट. उद्या जर एक्झामिनरनी विचारलं की बाबा ही टेस्ट का लावली, डिफेंड करता आलं पाहिजे साहेब. 90% कॅन्डिडेट डिफेंड करू शकत नाही. आपण शेवटी करतो काय, सिग्निफिकन्सच बघतोय किंवा को रिलेशन बघतोय ना. जास्तीत जास्त काय बघणार, प्रिन्सिपल कंपोनेंट बघणार, त्याच्या व्यतिरिक्त काय बघणार. त्याच्यामुळे बी अलर्ट ऑन दैट ना, वो वैसा होने मत दो. आपका रिसर्च ये आपकी जिम्मेवारी है, उसके हर पहलू से आप वाकिफ होने चाहिए. सैंपल कितना लिया, ये टेस्ट क्यों लगाई, वो क्यों नहीं लगाई, सब आपको डिफेंड करना आना चाहिए. नहीं तो तकलीफ होती, वाइवा के दिन आंसू निकलते हुए देखा मैंने लोगों को. एक कैंडिडेट का ऐसा हुआ था लिटरेचर रिव्यू में, जिसका नाम लिखा था वो बिब्लियोग्राफी में नहीं था. एक्झामिनरला राग आला उगाच, मग ते शांत केलं त्याला. या चुका नका होऊ देऊ, ते अनइथिकल आहे. वो अब उसका थीसिस लाइब्रेरी में होगा, बट खंत त्याला रिव्हिजन देत नाही ना, कोण परत काय एका लाईनी करता 6 कॉप्या काढेल. जमा करायच्या आधी तंतोतंत झाला पाहिजे, त्याच्यात 0 चुका पाहिजे. 10 लोकांकडनं तो वाचून घ्या, त्याच्यातल्या सगळ्यात चुका. आणि मी तुम्हाला आत्ताच सांगतो ती टेक्निक. एकदा सगळं झालं ना तुमचं, प्रत्येक चॅप्टरची वेगळी फाईल ठेवायची, प्रत्येक महिन्याचे वेगळे फोल्डर बनवायचे. त्याच्यात वर्डमध्ये एक ट्रॅकिंग नावाचा फंक्शन आहे. म्हणजे आता तुम्ही जानेवारीत काही काम केलं, फेब्रुवारीत केलं, मार्चमध्ये केलं, आता मला एप्रिलमध्ये करायचं असेल तर मी मार्चचं फोल्डर उघडेल, ट्रॅकिंग मध्ये जाईल, म्हणजे मला कळेल 10 महिन्यात मी काय काय चेंजेस केले. एकदा सगळं झालं कि इथे एक टूल असतं एक्सेप्ट चेंजेस, वो करने का, और हर एक फाइल को अलग अलग प्रिंट करने का, और जमीन पे बैठ के हाथ में पेंसिल पेन कलर सब लेके बैठने का, एक एक लाइन पढ़ने का, एक एक लाइन, कॉमा सेमीकोलन हायफन कोट इन्व्हर्टेड कोट डबल कोट, अगदी शांतीने. आणि ते रात्री, मला असं रात्री 11च्या नंतर एकटं बसायचं,
रात्रभर अशी कामं करायची, मग शांतीने ते वेगळं ठेवायचं. मग सगळं एकदा झालं की परत कम्प्युटरवर बसायचं, तो पेपर घेऊन सगळ्या चुका दुरुस्त करायच्या, परत त्याला सेव्ह करायचं. मर्ज मत करो फाईल, कारण की जेव्हा प्रिंटिंगला वगैरे जाते ना, खूप घोटाळे होतात त्याच्यात पेज सेट करण्यासाठी, तर ते आत्ताच मी सांगितलं. एनिवे, आप जब ग्रांट के लिए अप्लाई करोगे तो आप झूठ या स्ट्रेचिंग द ट्रूथ बोलते हो उसको, वो कभी नहीं करना है. आप जॉब एप्लीकेशन या सीवी के ऊपर भी आपको झूठ नहीं बोलना है. हे तुमच्या कामाचं नाही, हे गाईडसाठी आहे. मेकिंग डेविएशन फ्रॉम रिसर्च प्रोटोकॉल अप्रूव्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन. कल मैंने आपको क्या बोला, कुछ यूनिवर्सिटी में आपका सिनॉप्सिस अटैच किया जाता है थीसिस के पीछे. क्यों? क्योंकि आपको आरआरसी कमिटी ने सिनॉप्सिस के बेसिस पे काम करने को दिया, तो वो प्रोटोकॉल था. आपने अगर सिग्निफिकंट डेविएशन किया है, आपण अनइथिकल आहात. त्याच्यामुळे डेव्हिएट करायचं नाही. होतं डेव्हिएशन होतं, मी नाही म्हणत. 5% करा, 8% करा, 20% नका करू. हो. देन सॅबोटायझिंग someone's work, stealing supply, book, data rigging and experiment. नहीं, अनइथिकल. मेकिंग अनऑथराइज कॉपी ऑफ डेटा, पेपर, कंप्यूटर प्रोग्राम, अनइथिकल, जो मैंने अभी आपको बताया था. deliberately overestimating the clinical significance of new drug. अभी आज मॉर्निंग का पेपर में न्यूज आया था, अपनी जो देसी वैक्सीन है उसका एफिकसी 81% आया, पण सॅम्पल किती होतं, 23,600. टेस्ट ट्रायल नंबर 3 में एफिकसी बढ़ के आई. पर अगर किसी ने कम सैंपल लेके अगर एफिकसी बढ़ा के दिखाई तो वो अनइथिकल होता है. आणि फार्मास्युटिकल आणि ड्रग कंपन्या हे काम करतात इकॉनॉमिक बेनिफिटसाठी, बरं का. हे परीक्षेच्या दृष्टीने, आयुष्याच्या दृष्टीने, लाईफच्या दृष्टीने, रिसर्चच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. टाइप 2 एरर. अब क्या होता है, जैसे कल मैंने फ्लो चार्ट में बोला, एवरी स्टेप पे गलती. अगर आपने रिसर्च का डिजाइन गलत हुआ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है. और वो गड़बड़ कहाँ होती है? वो गड़बड़ होती है हायपोथेसिसच्या टेस्टिंग में. त्याला आपण म्हणतो टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर म्हणजे काय? नल हायपोथेसिस जो आपका है H0, वो एक्चुअली फॉल्स है, पर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. अब ये क्यों हुआ? 2 वजह से. पहली वजह जो है कि वाकई में आपका नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, या आपने जो स्टैटिस्टिक की टेस्ट लगाई है उसकी पावर इनएडिक्वेट है. कळलं हे सगळ्यांना? तुमचा नल हायपोथेसिस हा चुकीचा आहे, पण तरी तुम्ही त्याला ऍक्सेप्ट केलं. याचे 2 कारण होऊ शकतात. कारण खरोखर HO हा करेक्ट आहे, किंवा तुमच्या डिझाईन मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, किंवा तुम्ही जी स्टॅटिस्टिकल टेस्ट लावली आहे ती इनएडिक्वेट लावली आहे किंवा चुकीची लावली आहे. आलं लक्षात? अब मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं, सर एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा? एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, बट अगर गलती से पता चल गया, म्हणजे हे डिटेक्ट करणं मुश्किल आहे बरं का, एवढं सोपं नाहीये. पण ऍज ए रिसर्चर, ऍज ए इथिकल रिसर्चर, यू गॉट टू मेक शुअर यू आर नॉट क्रिएटिंग अ टाइप 2 एरर नोईंगली. ती अननोईंगली झाली तर मग आपण त्याच्यावर डिबेट करू. जाणून बुजून ती करायची नाही. आणि जाणून बुजून करायच्या मागचं एकच कारण आहे, भलत्या सलत्या टेस्ट लावते पोरं डेटाला. म्हणून मी परत एकदा म्हणतो, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन से डेटा को क्या लगेगी, क्या लग सकती है, क्या लगनी चाहिए, एक बार स्टॅटिस्टिक्स के एक्सपर्ट से डिस्कस करो. काय सरांनी खूप पापड बेलले आहे बरं का स्टॅटिस्टिक्स साठी. मी खूप लोकांना भेटून आलोय, इव्हन हैदराबादला वगैरे जाऊन आलोय, आणि मला भीती होती की हे काय एकदा कळलं की मग काही प्रॉब्लेम नाही. पण तरी मी एक्सपर्ट नाहीये की तुम्हाला गाईड करू शकतो.
पण मला 70-80% कळतं की या डेटाला मी ही टेस्ट लावली तर माझं असा अँटिसिपेटेड आउटकम येऊ शकतो. आता पब्लिकेशन, तुम्हाला 2 पेपर पब्लिश करावे लागतात फॉर करियर प्रोग्रेशन. अगर आपको ग्रांट लेनी है तो आपको पेपर पब्लिश करना पड़ता है, आपको प्रमोशन चाहिए तो पब्लिश करना पड़ता है, और आपको अगर पीयर एकेडमिक पीयर वर्ल्ड में आपका नाम कमाने का होता है एरिया ऑफ रिसर्च में, तो आप पब्लिश करते हैं. वन शुड नॉट चीट, फॉल्सिफाइज द डेटा, वन शुड नॉट प्लेगराइज. प्लेगरिज्म का मतलब है राम नाम जपना, पराया माल अपना. सो हम किसी से आइडिया लेते हैं बट हम वो आइडिया को एट्रीब्यूट नहीं करते. अब मान लो मैं विजय रंगारी सर के साथ इंडियन कॉफी हाउस में बैठा हूं, कॉफी पीते आज शाम को 4 बजे, और उनसे बात करते करते मेरे को एक आइडिया आ गई और वो आइडिया पे मैंने रिसर्च पेपर लिखा. तर आजच्या परिस्थितीला असे लोक आहेत ते साईट करतात the original source of idea was having a coffee conversation with Shri Vijay Rangadi at Indian Coffee House Nagpur 4 PM 4th of March. असं सायटेशन करतात बाबा. एका पेपरमध्ये एक मी सायटेशन असं बघितलं आणि उगवत्या सूर्याला बघून त्याच्या डोक्यात ही आयडिया आली. दॅट इज अ हायेस्ट लेवल ऑफ इथिक्स. एक लक्षात ठेवा, तुमचं स्वतःचं काहीही नाही बरं का. जे लोक खूप पोमाडेंगी करते ना का मले खूप येते, मले खूप माहिती आहे, बट तुले जे माहिती आहे ते दुसऱ्याकडनं घेतलं ना तू. आपल्या ओरिजिनल आयडिया कोणाच्या नसतात. त्या आयडियांच्या मागे एखादं काय म्हणतात स्तोत्र असतं जे तुम्हाला स्फूर्ती देतं, मोटिवेट करतं. आपलं काहीही नाहीये हे लक्षात ठेवा. मी जेव्हा माझे मोठ्या साहेबांना इथिक्सचे लेक्चर वगैरे देतो ना, मी त्यांना हे म्हणतो, आप खाली हात आहे, खाली हात ही जाओगे. आयुष्य अगदी साध्या पद्धतीने जगायचं तर आयुष्य जगायचा मजा येतो. भांडण, तंटे, लोभ, राग हे काही करायचं नाही, साधं जगायचं. जसे तुमचे प्राणी जगतात ना तसंच. सो आपको कहीं से आइडिया भी आई ना, सोर्स दॅट आयडिया. मला एकदा ट्रेनमध्ये डिस्कस करताना एक आयडिया मिळाली, मी साईट केलं होतं. विदर्भ एक्सप्रेस में बैठ के between this station during the discussion, this is the source of idea. आता हे प्लॅगरिझम. आता प्लॅगरिझम मध्ये हे थोडं रोमन एम्पायरचं उदाहरण आहे. मी तुम्हाला एक सोपं उदाहरण देतो. प्लॅगरिझम इज नथिंग बट टेकिंग समबडीज वर्क एंड यूजिंग एज अवर ओन. अब आपको 500 वर्ड तक किसी का लेना और एज इट इज उसको साइट करना ये अलाउड है. उससे ज्यादा अगर आपको लेना होगा अप टू 1500 वर्ड तो आपको उसका रिटर्न कंसेंट लगता है. ये मैं सोशल साइंस का बता रहा हूँ, बाकी का शायद मुझे उतना मालूम नहीं है. या किसी बुक या जर्नल का अगर आप कुछ पार्ट लेते हो तो आपको उसे साइट करना पड़ता है. कई बार लोग क्या करते हैं, कोणाचं तरी वाक्य घ्यायचं, त्याला पलटवायचं आणि ते आपल्या नावावर टाकायचं. त्याला स्पिनिंग म्हणतो आपण. म्हणजे ते प्लॅगरिझम सॉफ्टवेअर मध्ये डिटेक्ट होत नाही. अब उसके तरीके, बरेचदा लोक कन्सेप्ट घेऊन स्वतः. याच्यातला सोपा मार्ग कसा आहे, काहीतरी वाचायचं, ते वाचल्यावर त्यातला उसका निचोड वो समझ लेने का और अपने हैंडराइटिंग से पेपर पे लिखने का, तो वो आपका होगा. अब कई बार क्या होता है, हम अपने थीसिस में या रिसर्च में स्टैटिस्टिक, ग्राफ, टेबल, नंबर, जितना भी डेटा जो भी यूज कर रहे हो सबका रेफरेंस देना अनिवार्य है. सर आवाज येत नाहीये. आवाज येतोय का? हो सर, येत आहे सर आवाज. आ रहा है. तो चित्रा मैडम को नहीं आ रही है. चित्रा मैडम का फोन खराब हुआ होगा. तो कई बार हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं पर डेटा को सोर्स नहीं देते, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि वो डेटा आपका है. वैसा मत कीजिए. मैं आपको 2-3 बहुत क्रिटिकल चीजें बताता हूँ. द मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ रेफरेंस इज, क्योंकि अगर आप डेटा ऑनलाइन किसी वेबसाइट से ले रहे हो, किसी पब्लिकेशन से ले रहे हो, तो ब्राउजर में वो हाइपर लिंक पे जाने का, राइट क्लिक करने का
आपके रिसर्च के फाइल में आने का, वो टेबल के नीचे उसको पेस्ट करने का, और एंटर करने का, तो वो हाइपरलिंक आ जाएगी। मतलब अगर कोई उसे देखना चाहता है तो वो जाके वहाँ डेटा चेक कर सकता है। बरेजा लोग को फेक डेटा सोर्स देता है जो ट्रेस हो नहीं सकता। तो वो वैसा मत कीजिए कृपा करके। देन कोटेशन, ओके, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट, ओके। व्हेन वी आर राइटिंग, मेक श्योर वी राइट इट प्रिसाइजली वर्ड फॉर वर्ड एज इन द ओरिजिनल। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था चले जाओ, या नेताजी ने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एज इट इज उसे कोट करना है। ठीक है, कोटेशन मार्क में। अगर हम कोटेशन मार्क में नहीं डालते हैं और अपना उसका क्रेडिट लेते हैं, तो हम प्लॅगरिझम के जिम्मेवार होते हैं। त्याच्यामुळे एक लक्षात ठेवायचं, जे काही हिस्टॉरिकल स्टेटमेंट किंवा जे कोणी अजून म्हटले असते तो ते कोटेशन केलेलं आवश्यक है। वो अगर कोर्ट में नहीं होगा तो वो आपका माना जाएगा। ठीक है। देन पैराफ्रेजिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप उसको घुमा देते, पैराफ्रेजिंग भी करना सही नहीं है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कोट के बजाय उसको पैराफ्रेज करते हैं, विच मे नॉट बी द राइट वे टू डू, एंड वन शुड नॉट डू दैट क्वाइट ऑफन। देन कई बार अनइंटेंशनली वो किया जाता है किसी कॉन्टेक्स्ट में। वो ऑथर लिखते समय अपने हिसाब से वो लिख देता है और वो पैराफ्रेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में आता है रादर देन दी डायरेक्ट कोट। तो वो डेलिबरेट नहीं होता है, वो अनडेलिबरेटली या अननोइंगली वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक होती है, बट ये फ्रीक्वेंटली ऐसा करना सही नहीं है। इक्का दुक्का अगर ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं रिसर्च में, दे आर एक्सेप्टेबल। थोड़ा और आगे जाता हूँ, एंड पब्लिक नॉलेज। अब जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि 1948 में गांधी जी को गोली मारी गई थी, ये पब्लिक नॉलेज है। तो पब्लिक नॉलेज का जो फैक्ट है, वो फैक्ट को वैसा ही हमको रखना है। अगर आप पिछले 6 महीने का अगर डेटा देखोगे, डेटा नहीं न्यूज देखोगे, तो किसी ने बोला था गांधी जी को चौथी गोली लगी थी, हाँ, या अगर किसी ने बोला कि गांधी जी को चाकू मारा गया था, हाँ, तो वो एक कंट्रोवर्सी होती है और उसके लिए साइटेशन होना जरूरी है और थ्योरी होना भी जरूरी है। तो अगर आप इन चीजों में नहीं पढ़ते तो हिस्टॉरिकल फॅक्ट या पब्लिक नॉलेज जिसको बोलते हैं ते ॲज इट इज टाकायचं आहे, त्याला पॅराफ्रेज करायचं नाही। देन मेडिकल रिसर्च, हम साइंस वाले लोग कई बार अपना रिसर्च ये इंसानों पर और जानवरों पर करते हैं, है ना। जैसे अभी ये वैक्सीन इंसानों पे ट्रायल, कैंसर के दवा की ट्रायल की जाती है, कुछ चूहे के ऊपर की जाती है, सो एंड सो फोर्थ। तो बरेचदा मेडिकल, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस पे जब ह्यूमन से रिलेटेड हम रिसर्च करते हैं तो कॉम्प्लेक्स इश्यूज, इथिकल इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है हमारे जितने भी रिसर्च पार्टिसिपेंट है उनको इन्फॉर्म करना है और उनका कंसेंट लेना है। उनको बिना इन्फॉर्म किए, बिना कंसेंट लिए अगर हम काम करेंगे, दैट विल बी कंस्ट्रूड एज अनइथिकल। जो भी पार्टिसिपेंट है उनको इनफ जानकारी देनी है कि इसमें क्या गलत हो सकता है और क्या फायदे हो सकते हैं अगर वो वॉलंटियर बन के आते। जैसे ये कोरोना वैक्सीन के लिए ये एनएमसी के लोग आए थे हमारे यहाँ, उनको वॉलंटियर चाहिए था वैक्सीन ट्रायल के लिए, मैंने मेरा नाम दिया था, बाद में उनका फोन मेरे को आया नहीं, पर अगर वो टेस्ट के लिए मेरे को लेके जाते तो मैंने वो लिया रहता वैक्सीन। उन्होंने बाकायदा मेरे को पूछा तुम्हाला काही रोग आहे का, व्यसन आहे का, तब्येतीचं काही प्रॉब्लेम है, तो मैंने बोला कुछ नहीं है, तो मेरा नाम, पता और मोबाइल लेके गए थे। बट उन्होंने मेरे को बताया नहीं, बोले आप जब आओगे जीएमसी में तो हम आपको सब बताएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना। तर ते सायन्स मधल्या लोकांना करायचं आहे। कई बार जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च ये ओव्हर जस्टिफाई किया जाता है। कई बार जो पार्टिसिपेंट उनका प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो मिलता है। कई बार इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया जाता है, पोटेंशियल हार्म के बारे में नहीं बताया जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये इथिकल स्फीयर में आती है।
डॉक्टर वॉंग होते कोरियाचे. 2004 मध्ये ते जगातले मोस्ट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट होते. वॉन्ग कू सुक ने क्या किया था, उन्होंने 30 क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो बनाए थे. मई 2005 में वो टीम मेंबर ने बताया था कि स्टेम सेल जो थे, स्टेम सेल लाइन जो बनाई गई थी, ये स्किन सेल जो थे 11 लोगों के, उससे बनाई गई थी. फिर उसी साल 2005 नवंबर में डॉक्टर वॉन्ग ने बताया कि उसके जो रिसर्चर थे उनके एक्स का इस्तेमाल किया, उसके लिए उसने एपोलॉजी प्रेजेंट किया अपनी. उसी साल दिसंबर में उसके कलीग ने बोला ये रिसर्च पूरा फेक था. फिर एक पैनल बिठाया गया और पैनल ने बताया कि ये पूरा रिसर्च फैब्रिकेटेड था. सो ही वॉज अ हीरो इन साउथ कोरिया. He was a top human cloning scientist. He held as a breakthrough earlier, but it was fabricated. आणि त्या पॅनलनी म्हटलं होतं दिस इज अ सिरियस wrongdoing that has damaged the foundation of science. राइट. सो हमको स्पेशली साइंस में सबसे बड़ा डर होता है. आप जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो तो किसी को मालूम नहीं आप क्या रिकॉर्ड कर रहे, क्या मेजर कर रहे, कितना लिख रहे, कैसे लिख रहे, है ना. तो इसीलिए कोई भी चीज गलत नहीं करने का, इंटेंशनली गलती कहीं होती है उसको सुधारने की कोशिश करने का, चीटिंग, लाइंग आर दी शॉर्टकट्स एंड इट विल लीड यू टू नोवेयर बट टुवर्ड्स दी सो कॉल्ड, आपको एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाएगी जहां पे आपकी इज्जत जा सकती है, नाम खराब हो सकता है. तो वो नहीं करने का. जितना हमको जमता है उतना ही करने का और अच्छे तरीके से करने का. तरीका इंप्रूव करने के लिए कोलैबोरेशन करो, लोगों को मिलो, दोस्तों की सलाह लो, एक्सपर्ट की सलाह लो. देयर आर वेज एंड मीन. गिव फुल अटेंशन टू द वर्क. वी स्टे ऑनेस्ट एंड सिंसियर अबाउट द वर्क दैट यू आर डूइंग. राइट. So with that I conclude my session. We have about 13 minutes for the Q&A. तर आजच्या दोन्ही सेशन पैकी काही तुमचे प्रश्न असतील किंवा कालच्या संबंधित जरी असतील तर अवश्य विचारा. परीक्षेच्या दृष्टीने लक्षात ठेवा काय काय, क्वालिटेटिव्ह रिसर्च, क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च, डिडक्टिव्ह, इंडक्टिव्ह, theoretical framework, conceptual framework, principle of ethics. That's it. हे महत्वाचं आहे. परीक्षा देताना जे काही ऑल्टरनेटिव्ह आहेत MCQ मध्ये सगळे वाचायचे, कारण निगेटिव्ह मार्किंग असतं, तुक्के लावायचे नाही. आता तुम्ही ग्रुपमध्ये अभ्यास करू शकत नाही, पण सेशन संपल्यावर तुमचे मित्रमैत्रिणी जे कोणी आहेत त्यांना फोन करून डिस्कस करून आपलं नॉलेज थोडं स्टेबल करून घ्यायचं. काही प्रश्न आहेत का विचारा. Hello, sir. हाँ पूछो. Sir, I have one question. Okay. While working on PhD, if we publish some paper, research paper, and when we are going to write our thesis, can we take all data from our research paper? Absolutely yes. Yes. अब इन्होंने जो सवाल पूछा है गणेश बेले ने, वो अहम सवाल है. आप दो चीजें मेरे को कैंडिडेट हमेशा पूछते हैं. पहला सवाल कैंडिडेट पूछते हैं कि मैं पीएचडी कर रहा हूं टॉपिक एक्स में, मेरा रिसर्च है टॉपिक वाई में. टॉपिक वाई ये एक्स से रिलेटेड नहीं है या इंटर रिलेटेड है, तो वो पेपर काउंट होगा क्या? अगर वो इंटर रिलेटेड, इंटरडिसिप्लिनरी है तो वो रिसर्च पेपर काउंट होगा. अगर आप कॉमर्स में पीएचडी करें और आप आर्ट्स में पेपर पब्लिश करें तो वो पेपर काउंट नहीं होगा. बेले सर ने ये सवाल पूछा है कि वो जो डेटा ले रहे हैं वो पेपर में, वो पीएचडी थीसिस से ले रहे हैं. इससे बेहतर तो और कुछ हो नहीं सकता. इट इज एब्सोल्युटली अलाउड, इट इज एब्सोल्युटली लेजिटिमेट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. जस्ट मेक श्योर. हाँ ओके, बोलो क्या हुआ. One person told me that it will be self plagiarism. नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये. मैं अभी आपको वही बोला था, जस्ट मेक श्योर दैट से कि आपका
थीसिस जमा होने के बाद आपको पीएचडी मिलने तक 1-1.5 साल लग गया। उसके 6 महीने पहले आपने ये पेपर पब्लिश किया। वो पेपर में कुछ एक टाइप का डेटा था और आपके थीसिस में अगर एक टाइप का डेटा था, हो सकता है, ये पॉसिबल है कि डेटा चेंज हो सकता है। आपने काम करने के बाद या पब्लिश करने के बाद आपको लगा कि ये डेटा सही नहीं है, आपने रिफाइन किया, तो वो रिफाइन डेटा भी अगर आपके थीसिस में रहा फिर भी चलता है, ओके फिर भी चलता है। आप कोण म्हणतो सेल्फ प्लॅगरिझम? कोण आहे येडा मूर्ख असं म्हणणारा? सेल्फ कधी असते का सेल्फ प्लॅगरिझम? माझे कपडे मीच घातले तर सेल्फ प्लॅगरिझम चोरी म्हणाल का त्याला? मग नाही नाही, हे आमच्या चुकीचं कॉलेजमध्ये आहे एक साहेब. आले होते नाही, ते लेक्चर देण्यासाठी. नाही, त्यांनी नाही, ह्या नाही. विषयावर बोलले हा होते. हा उलट अतिशय चांगला, ऍक्च्युली मेनी वेस्टर्न कंट्रीमध्ये दे एनकरेज टू पब्लिश पेपर फ्रॉम द रिसर्च डेटा इटसेल्फ. उससे क्या होता है, अब ये देखो क्या होता है, अगर आपने आपके डेटा का पेपर पब्लिश किया और मैं भी उस टॉपिक से रिलेटेड पीएचडी कहीं और कर रहा हूँ, मैंने आपका पेपर पढ़ा और मेरे को पता चला कि आप ये अप्रोच से काम कर रहे हो, मैं हो सकता हूँ दूसरे अप्रोच से काम कर रहा हूँ, तो मेरे रिसर्च को डायरेक्शन मिलती है। ये हाईली एनकरेज फिनोमिना है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अपने यहाँ वो नहीं है शायद, उतना उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते. नाही, अजिबात नाही आहे. जे कोणी आले असतील ना त्यांना ईमेल टाका आणि सांगा देर इज नो सच थिंग एज सेल्फ प्लॅगरिझम. In that case, do I need to give the reference that this was paper? नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. क्या क्या पूछ रहे? Sir, The your question- voice is not clear. Sen Gupta sir. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो लगता है. और रुक जाओ और फिर बात करो. नहीं, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं घर से ही बात कर रहा हूँ. शायद फैन चालू था करके आपको आवाज, हाँ, वो फैन चालू था करके आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था. Anyway, sir, so what I was asking that what Ganesh sir has just asked, whether I need to give the reference of my paper there. That this thing I have mentioned in this, so that reference should come there somewhere. It is mentioned in that रेफरेंस paper. देना है. रेफरेंस कहाँ? I have given published a paper, my own paper. So should I give reference of that paper in my thesis? No, It is not required. Absolutely. It is absolutely not required. Okay, sir. अभी आपने और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लाया है. Say you have published 3 or 4 papers. Yes, And sir. in one of the paper there is a sizable part. Say you have published in joint publication. That means there are more than one author. And there is Okay. something significant in that paper which you have utilized in your PhD thesis. In that case, it is absolutely allowed you to put in a bibliography or even Okay. citation. आप अगर देखो, if you read a research paper of Nobel laureate, मैं तो खैर साइंस का ज्यादा समझता नहीं, मैं अमर्त्य सेन साहब के कई पेपर पढ़ता हूँ. अमर्त्य सेन अपने पेपर, अपने किताबों को बहुत फ्रीक्वेंटली रेफर करते हैं, साइट करते हैं. तो इट Okay. इज एब्सोल्युटली अलाउड अगर वो जॉइंट में होगा तो. उसके बाद भी अगर आपने आपकी के थीसिस का खुद पेपर बनाया और फिर उसको वैसे के वैसे थीसिस में रेफर किया तो वो गलत है. वैसा नहीं करना. Okay. Yeah, that was a good question. Yes, sir. Another thing I would like to ask you, sir. In the first session, you had told about the this project proposal and all these things, and there you have mentioned that a person from academic who is at least professor in rank, I need to have him in the team. But I am a non-academic person. I have my own software company. So if I want to get this kind of project, whether I am allowed to get this project, and in that case, who will be my principal investigator? You are absolutely eligible. I am also non-academic. I am only a visiting faculty. I am retired actually. When I came back from abroad, I started my NGO. I work in CSR. I am not a faculty also, but I am eligible. Any person with a qualification, but there is a catch. You have to publish papers, sir. Yes, sir, that I have.
That I am having, sir. Then okay. Research publication is a must. Without that, I'm, Sir, they but Yes, won't. sir. we have to collaborate with one of the institute, na? Yes, yes. Yes. So you Education Institute. Yes. एजुकेशन इंस्टीट्यूट और चैरिटेबल ट्रस्ट और एनी Yes. इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल लेवल पे कोई नहीं देता है बिकॉज आप Because थक there are जाओगे. financial हाँ, financial हाँ, जो भी reimbursement होता है. हाँ, So for उसका that ऑडिट होना चाहिए, Mhm. टैक्सेशन. हाँ, हाँ, इंडिविजुअल को कभी नहीं मिलता है, नेवर मिला. छोटा मोटा तो 5, 10, 15, 20 हजार का मिलेगा, बट वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए विथ ट्रैक रिकॉर्ड. जैसे हम यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आजकल वो TDS मांगते हैं, वो GST नंबर मांगते हैं, सब Hello, तो इंस्टीट्यूट से करना है. या yes sir. sir. हाँ, Earlier you said that if we publish a paper and we are taking material from our paper, there is no need to cite our paper. But you also said that if there is a second author, then you need to cite that paper. And generally, it's Yeah. happened that second author it's our guide. So most of papers have two authors. First me and second is my guide. Then in that case, you need to cite. I am not sure how much your guide has contributed. If you feel that your guide has significantly contributed, then you can definitely cite, or unless he is an expert in that field. See, क्या होता है ना, typically a joint paper, why it is preferred, because one is of superior qualification or two people are of both superior qualification, right? So either one is better or two are equally better, and then the worst case scenario, two are useless. So we presume that one is better and one is acceptable level. In that case, to give a contribution of that second person, it is better to cite. But if so, to answer your question, if your guide has contributed or if it is a known person, so citationचं काय होतं ना, ते जर नोन असतील तर ते जगाला सांगणं हे महत्वाचं आहे. ते नोन असून तुम्ही सांगत नाही, म्हणजे एखादं गाणं, आता समजा नागपूर विद्यापीठाच्या गणेश उत्सवात मी लता मंगेशकरांना बोलवलं, त्यांनी एक नवीन गाणं इथे गायलं. जगात कोणालाही ते कळलं नाही की लता मंगेशकर नागपूर विद्यापीठाच्या गणेश उत्सवात आल्या आणि त्यांनी एक नवीन गाणं गायलं. पण त्या लता मंगेशकर आहेत, स्वर सम्राज्ञी आहेत, तर मी हे कुठेतरी मेन्शन केलं पाहिजे की नागपूर विद्यापीठात त्यांनी गायलेल्या 70,000 गाण्यांपैकी एक नवीन गाणं त्यांनी गायलं. You got it what I'm saying? So if your guide is a credible power or authority on that subject, to just respect him. It is not about you, it is about the second person. You will have to put it in a bibliography. It is your call. If you do it, it's okay. If you don't do it, it's still okay. Okay, sir. Yeah. 3 मिनिटं उरलेत. आहेत का एखादा प्रश्न? Sir, I have a question. Sir, am I Go audible? ahead. Yeah, audible. प्रणय बोल. सर असं आहे की काल तुम्ही म्हणाला होतात की जर सिनॉप्सिस मध्ये काही असेल तर ते तुम्हाला थिसिस मध्ये चेंज करता येणार नाही. तर मला एक जनरल क्वेश्चन होता की माझा सॅम्पल साईज जो आहे तो अप्रॉक्सिमेटली 750 आहे, पण काल तुमचं ऐकल्यानंतर मला वाटतं की तो खूप कमी आहे, त्याला खूप अजून वाढवता येईल आणि स्कोप आहे, तर ते मला अजून रिसर्च करायच्या वेळेस वाढवता येईल का? अब देखो, मैं इसका जवाब हिंदी में देता ताकि सब लोग ये समझ पाए. अच्छा हुआ ये प्रणय ने सवाल पूछा. दो चीजें परमानेंटली ध्यान में रखो. पहले प्रणय के सवाल का जवाब, सिनॉप्सिस में सैंपल है 750, पर प्रणय अभी सैंपल करना चाहता 1200. 100% अलाउड. बट अगर सिनॉप्सिस में 750 है और प्रणय आपको लगता है सैंपल अभी 500 करना है, तो प्रणय को गाइड का लेटर, PhD सेल का अप्रूवल, वो अप्रूवल प्रोसेस में जाता. मतलब सैंपल साइज बढ़ाने की परमिशन है और प्रणय को वाइवा के दिन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने सैंपल साइज क्यों बढ़ाया. अब कई केसेस हुए हैं कि सिनॉप्सिस में सैंपल बढ़ाया बट एक्चुअली में मिला ही नहीं, ऐसा भी हुआ है. तो कई बार कैंडिडेट बिना अप्रूवल लिए वाइवा में पहुंच जाता है और वहां पे बोलता है कि मला मिळालं नाही. जैसे कल वो चाइल्ड लेबर वाली कोई लड़की थी, वो बेचारी का मेरे को टेंशन आ रहा, वो क्या करेगी, उसका भी थीसिस है ना, उसको सैंपल ही नहीं मिला तो वो क्या कैसा डिपेंड करेगी. तर
सॅम्पल जास्ती घेणं हे अलाउड आहे. आरआरसी ने अप्रूव किए हुए सिनॉप्सिस में कोई भी बदल करना आपको अथॉरिटी नहीं है अनलेस इट इज परमिटेड बाय आरआरसी. मुद्दा नंबर 2, थांबा. तुम्ही तिथे 5 हाइपोथेसिस टाकले सिनॉप्सिस मध्ये. स्टडी करते समय आपको पता चला कि यार एक हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सब्जेक्ट के लिए या 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हाइपोथेसिस ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते. आपने सिनॉप्सिस में 4 डाले, आपको 2 एक्स्ट्रा लेना है, लो. सिनॉप्सिस में 5 है, आपको और 3 लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, लो. और वहां पे 5 है और आपने 3 किए, आप गड़बड़ी में आ गए. तो सैंपल और हाइपोथेसिस, सैंपल आप ज्यादा ले सकते हो, हाइपोथेसिस भी ज्यादा ले सकते हो, ये अलाउड है. सर एक्सक्यूज मी, सर मला तर माझ्या आरआरसी च्या सेमिनार मध्ये त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 500 सॅम्पल्स कलेक्ट करा. रिटर्न मध्ये आहे तुमच्याकडे? हो, त्यांनी मला माझ्या याच्यावर बरेच लिहून दिलंय, बरेचसे करेक्शन, आणि ते म्हणाले की तुम्ही कमीत कमी 500 घ्या, म्हणजे 500 तर घ्या असं म्हणाले. तुमचं सॅम्पल सिनॉप्सिस मध्ये कितीच आहे? सिनॉप्सिस मध्ये मी काही सॅम्पल लिहिलंच नाही. घ्यावं लागेल ना मॅडम. नाही, मी त्यांना तेव्हा बोलताना म्हणाली होती की 50 ते 100 एवढं मी करेल, कारण मला माझं ऍक्च्युली मला ऑडिबल हे पाठवायचे आहेत ऑडियन्सला, आणि ते त्या ऐकतील. माझं स्टॅटिस्टिक्स मध्ये आहे. पाहिलं मी तुमचं ते फ्रेमवर्क मध्ये. अरे तुम्ही 500 काय 1000 घ्या ना तुम्ही. संगीत ऐकणारे खूप लोक आहेत, मलाही पाठवून द्या, प्रीती मॅडमलाही एक पाठवून द्या. इट इज सी. थँक्यू सर, थँक्यू. कारण मला मिळत नाहीये तेवढे ऑडियन्स. अरे असं कसं मिळत नाहीये? मिळतात, हो, खूप मिळतात. थोडा तुम्हाला काय असतं मी तुम्हाला सांगतो, जे काही संगीत समारोह होतात किंवा जे काही असोसिएशन आहेत त्यांना भेटायचं, तिथून मास मेलिंग लिस्ट होते ना. ये सब करने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता अपने को, थोड़ा जुगाड़ जमाना पड़ता. डेटा कलेक्ट करणे ही एक मोठी कला आहे. तर थोडे हातपाय हलवायचे. तुमच्या घरी येऊन थोडी कोणी म्हणणार मॅडम हा डेटा घ्या म्हणून. नाही, घरी येऊन डेटा शक्य नाही. नाही, गमतीने म्हटलं मी, पण आपल्याला थोडे मी हातपाय गुगल हलवायचे. फॉर्म्स पाठवते आणि त्याच्यात असोसिएशनला द्या, त्यांची ईमेल आली, त्याच्यात ते लिहितील की अशा अशा करताय, त्यांना मदत करा. मग फटाफट कामं होतात. माहिती का? होतात कामं. तुम्हाला मिळेल अगदी 500 पेक्षाही जास्ती द्या तुम्ही. 50-100 वर पीएचडी थिसिस नाही होत. काल जे मी म्हणतो ना 888 माझा स्वतःचा बेंचमार्क आहे मिनिमम. मग ते जस्टिफाय होतं की हो, म्हणजे मला मिळत आहे व्यवस्थित इनपुट, त्याच्यावर मी डिस्कस करू शकतो. है ना? करा तुम्ही. हे जे आहेत ना असोसिएशन, संगीत अकॅडमी, इकडे जा ना, फिरायला जाता नागपूरमध्ये. जोपर्यंत लॉकडाउन नहीं है ना बेटा, सब लोग घूम लो. मेरे को ये खबर मिली है की बहुत जल्दी लॉकडाउन लगने वाला है पिछले साल जैसा. तर मागच्या वर्षी खूप मुलांना त्रास झाला डेटा वगैरे कलेक्ट करण्यासाठी. आता ताबडतोब तुम्हाला जितके हातपाय मारायचे मारून घ्या. वी नेवर नो लॉकडाऊन लागेल नाही लागणार, पण डेटा कलेक्शन आपलं थांबलं नाही पाहिजे. तर जिथे भ्रमंती करायची आहे ती करून टाका लवकर, जितक्या लवकर करायची करून टाका. है ना? चला, तुम्ही 2 दिवस ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. अकॅडमिक स्टाफ कॉलेज, प्रीती मॅडमला धन्यवाद, देठे सरांना धन्यवाद. त्यांनी हा मला ऑफर दिला. आय होप यू लर्न समथिंग. मलाही तुमच्याकडनं काही शिकायला मिळालं. चांगल्या पद्धतीने संशोधन करा, आपल्या विद्यापीठाचं नाव रोशन करा, आपल्या राज्याचं नाव रोशन करा, एक चांगले संशोधक बनायचा प्रयत्न करा आणि नेहमी शिकत राहा. तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा आणि कोरोनापासून बचाव करा. जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Can we contact you over your mail ID or to phone? ईमेल. हा नंबर ऍक्च्युली हा नंबर बदललेला आहे. नवीन नंबर मॅडम कडे आहे. मी नवीन नंबर सेंड करेल सर यांना, ज्यांना लागत असेल. हा, काल मला कुलकर्णी मॅडम सांगला, मी 5 मिनिटात त्यांचं थेरोटिकल फ्रेमवर्क वाचतो. ईमेल पे तुरंत जवाब देता हूँ. है ना? एनी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नो प्रॉब्लम. चलिए, थैंक यू सो मच सर फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड फ्रॉम HRDC Nagpur. I extend my heartfelt thanks to Dr. Nikhil Ataye sir
for all the lectures for this pre-PhD coursework. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, friends. Now I'm ending the meeting. We will meet at 2 p.m. for our post-lunch session. So take your lunch and back up to 2 p.m. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, ma'am.